تاریخ میں 4 تماچے ہیں جن پر خدا کا آسمان لرزا ہے، جن پر فرشتوں نے گریبان پھاڑے ہیں۔ پہلا تماچا نمرود نے جناب ابراہیم کے مارا تو رحمت الہی جلال میں آ گئی تھی اور نمرود پر مچھر کا عذاب آیا تھا۔ یعنی معصوم کو جب تماچا لگے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ دوسرا تماچا سن لو گے، دوسرا تماچا جناب یوسف کے رخسار پر پڑا۔ جب یوسف کو خریدا گیا ہے نا غلاموں کے بازار سے، اور بادشاہ کا غلام لے کر چلا ہے، تو راستے میں گریو یارڈ پڑا ہے، بہت مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک قبرستان پڑا جناب یوسف کے آبا و اجداد کا۔ یوسف معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے، صاحب اعجاز بھی ہے۔ غلام کھینچتا ہوا جناب یوسف کو لے جا رہا ہے۔ جناب یوسف کی نظر پڑی اس قبرستان پر جس میں جناب یوسف کے دادا اسحاق نبی کی قبر بھی ہے، جناب یوسف کی ماں کی قبر بھی ہے۔ یوسف نے جو اپنی ماں کی قبر کو دیکھا، زنجیریں چھڑائیں، جا کر اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ عزادارو، آپ نے سنا کیا جملہ؟ معصوم نبی قبر پر گیا بھی ہے، قبر پر لیٹا بھی ہے، قبر پہ جا کے رویا بھی ہے۔ تو اگر قبر پہ جانا، قبر پہ رونا بدعت ہوتا تو کبھی بھی معصوم یہ فعل انجام نہ دیتے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ گھر جا کر سوچنا، عزادارو، جب لپٹ کے جناب یوسف ماں کی قبر سے رونے لگے نا، جملہ سن لیں گے آپ، ماں کی قبر سے جب لپٹ کے رونے لگے تو وہ غلام آیا اور اس نے تماچا مار کے ماں کی قبر سے معصوم کو اٹھایا۔ ادھر معصوم کے رخسار پہ تماچا لگا، ادھر خدا نے آندھیوں کو حکم دیا چکروں کے چکر چلا دو، طوفانوں کو حکم دیا، کائنات میں قیامت برپا کر دو کہ میرے آسمان کے نیچے معصوم کو تماچا لگا ہے۔ عزادارو، بادشاہ کا دربار لرزنے لگا، فوجوں میں ہلچل مچنے لگی۔ آ کر پوچھا کیا ظلم ہوا؟ سب سپاہیوں نے کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بادشاہ حالانکہ کافر تھا، اس کی زبان سے نکلا تم نے ضرور کسی معصوم کو ایذا دی ہے، تم نے ضرور کسی معصوم کو ایذا دی ہے۔ اس غلام نے کہا معصوم تو نہیں، ہاں اس غلام کو میں نے تماچا مارا تھا۔ انہیں تو اس وقت تک پتہ نہیں تھا نا کہ یہ نبی ہے، اس کو تماچا مارا تھا۔ عزادارو، فوراً ہی اسے قدرت نے سزا دی جب اس نے اقرار کر لیا۔ اس پر بجلی گری، آسمان سے چل کر خاک ہو گیا معصوم کو تماچا مارنے والا۔ عزادارو، تیسرا تماچا کوفے کے بازار میں مسلم کے چھوٹے بچوں کو حارث نے مارا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے تو مصائب پڑھ دیے، میں کچھ بھی نہ پڑھوں تو بہت بڑی مجلس ہے بھائی، میرے بہت بڑی مجلس ہے۔ یہ تیسرا تماچا ہے دوستو جو مسلم کے یتیموں کو حارث ملعون نے مارا۔ اور چوتھا تماچا آج نہیں پڑھوں گا لیکن بتا دیتا ہوں، چوتھا تماچا وہ ہے کہ جب حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوا اور سکینہ پیٹتی ہوئی باہر نکلی تو شمر نے ایک ہاتھ سے کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، بچی زمین پہ گری، گر کے کہتی ہے چچا ابا۔ یہ چوتھا تماچا ہے، مگر یہ میں 9 محرم کو پڑھوں گا، مجھے یاد دلا دینا انشاءاللہ۔ اس کی تاریخ آج نہیں آئی، بتا رہا ہوں آج تو تیسرا تماچا۔ سن لو دوستو، بہت بڑا قاضی تھا قاضی شریح، جس نے عمر سعد کے ماشاء اللہ کے بعد، عمر سعد پہلا آدمی ہے جس نے کہ اسلام میں ماشاء اللہ لگایا۔ اس نے کوفے میں آ کر ابن زیاد عمر سعد نہیں، ابن زیاد نے کوفے میں ماشاء اللہ لگایا۔ مسلم کے بچوں کی تلاش شروع ہوئی، مسلم کی شہادت کے بعد مسلم اپنے بچوں کو قاضی شریح جو سب سے بڑا عادل تھا اس کے حوالے کر گئے تھے۔ جب ابن زیاد نے ماشاء اللہ لگایا، اس نے ان دونوں بچوں کو گھر سے رات کے اندھیرے میں باہر نکال دیا۔ اولاد والو، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے حفظ و امان، رو نہ رو مگر اپنے بچوں پہ نظر کرو، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اب رات کے اندھیرے میں 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، اندھیرے میں ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں۔ بقول میر انیس کے جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے۔ رات کا اندھیرا، کوفے کا سناٹا، کوفے کی گلیوں میں کرفیو لگا ہوا، کوئی بندہ نفس نہیں۔ فاطمہ کی اولاد، مسلم کے یتیم ایک دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ایک درخت پر
आधी रात गुजरी, एक मोमिना घड़ा लेकर, पानी का मटका लेकर दरिया पर पानी भरने आई। चांद पूरे आबोताब पर था। चांद की रोशनी में पानी की सतह पर, समझ गए ना, चांद की रोशनी में पानी की सतह पर उस मोमिना को दो चांद नजर आए। आहा आहा आहा। अज़ादारों, मुझ में हिम्मत नहीं रही पढ़ने की, लेकिन जहां तक मुझे मौला ने ताकत दी मैं ये जुमला जरूर पढ़ूंगा। सुन लेना औलाद वालों, तुम्हारे बच्चों को मौला सलामत रखे। मेरी माँ बहनें जो हजारों की तादाद में आई हुए, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। मुस्लिम के यतीमों की कहानी सुन लो अज़ादारों, मुस्लिम के उन बच्चों की कहानी जिन बच्चों की माँ ने कूफे जब लुटकर पहुंची है तो मुस्लिम के लाशे से पूछा था, मुस्लिम में ये नहीं पूछती तुम पे क्या गुजरी, मुस्लिम मुझे तो इतना बता दे मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं। मुस्लिम मेरे दोनों बच्चों को किसके हवाले किया। अज़ादारों, उसने दरख्त की तरफ मुड़ के देखा, दो चांद नजर आए। उसने कहा बच्चों नीचे आ जाओ। बच्चे सहम कर नीचे आ गए, डर डर के खड़े हो गए। उसने कहा डरो नहीं, चेहरों से तो किसी मासूम खानदान के लगते हो। आपने सुन लिया जुमला, ये चेहरों से तो किसी शरीफ खानदान के मालूम होते हो। कहा कि अगर तू हमें इब्ने ज़ियाद के सिपाही के हवाले न करे तो हम बता दें हम कौन हैं। उसने कहा वादा करती हूँ नहीं हवाले करूंगी जब तक मुझ में जान है, मुझे बता दो कि तुम कौन हो। कहा तू मदीने के सरदारों को जानती है। उसने कहा मैं कुर्बान मदीने के सरदारों पर, मैं कुर्बान मदीने के सरदारों पर, मैं कुर्बान मदीने के सरदारों पर। मदीने का सरदार मेरा अली है, अली के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन है। कहा अली के भाई को जानती हो। कहा हाँ, अली के भाई का नाम अकील है। कहा अकील के बेटे को जानती हो। कहा उसके बेटे का नाम मुस्लिम है। कहा हम मुस्लिम के बच्चे हैं, मुस्लिम के यतीम हैं। वो लिपट गई, अब आके दामन में छुपाया, अपने घर लेकर आ गई। जज़ाकल्लाह, क्या कयामत हो रही है। और मौला सलामत रखे तुम्हें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसी तरह पुरसादो ज़ैनब को यही पुरसेदारी पसंद है। अज़ादारों, दो चार जुमले और मैंने मजलिस को खत्म कर दिया। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, दो चार जुमले सुन लो। मजलिस कयामत पर पहुंच गई, पुरसा दे लो। कहा दामन में लपेटा, अपने घर ले आई। बच्चों के फटे कुर्ते देखे, मट्टी में अटे हुए गेसू देखे, खुश्क होंठ देखे। पहले पानी पिलाया, उसके बाद कहा बच्चों नहा लो। अब मुझे एक जुमला कहना है और आपका दिल आजमाना है। जिसके सीने में दिल है ना वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, पत्थर की मेरी जिम्मेदारी नहीं। बच्चों नहा लो। मुस्लिम का जो छोटा बेटा था ना, उसने कहा हमें तो नहाना भी नहीं आता। अब अंदाजा कर लो कितने मासूम थे बच्चे। कहा मेरे शहजादो, तुम मेरे आका के बेटे हो, तुम मेरी बीवी के नवासे हो, तुम मेरी बीवी के शहजादे हो, मैं तुम्हें खुद नहलाऊंगी। छोटे बच्चे के लिए पानी की टब रखी और बच्चे के जिस्म पर जब पानी का पहला कटोरा डाला, बच्चा पहली मर्तबा मुस्कुराया। बड़े भाई से कहता है भैया आज अम्मा बहुत याद आ रही है। अरे अम्मा ऐसे ही नहलाती थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब करो ना बात। मौला तुम्हें कोई गम न दे, मौला तुम्हें कोई गम न दे। अज़ादारों, बच्चों को नहलाया, बहुत तेज बहुत मुख्तसर कर दिए मैंने मसाइब, बहुत देर के मसाइब है। बच्चों को नहलाया, खाना खिलाया, एक हुजरे में ले जाकर बंद कर दिया। बच्चों हारिस मेरा शौहर है, मलून है, तुम्हारी तलाश में फिर रहा है, रात को यहाँ छुप जाओ, सुबह कोई इंतजाम करूंगी। अज़ादारों, बच्चे खामोशी से हुजरे में लेट गए। हारिस मलून रात को थका हारा आया बच्चों की तलाश से, आते ही खाना मांगा, बीवी ने खाना दिया। खाना खाकर अभी लेटा ही था कि छोटे भाई की आंख खुल गई। बड़े भाई का शाना हिलाकर छोटा भाई रोने लगा। भैया क्यों रो रहे हो? भैया हमने अभी अभी ख्वाब देखा है।
हमारे बाबा आए थे और वो कह रहे थे बच्चों तुम्हारी मुश्किल के दिन खत्म हो गए। औलाद वालों जुमले सुन रहे हो? बड़े भाई ने कहा हाँ हमें भी ख्वाब में बाबा आए थे, वो हमें लेने के लिए आए थे। ये कहकर दोनों बच्चे गले में बाहें डाल के रोने लगे और इस मलून की आंख खुल गई। एकदम तलाश किया, बीवी को उठाया, अरे कौन कहां से रोने की आवाज आ रही है। अंधेरे में चिराग जलाया, उस दरवाजे तक पहुंचा, कुंडी खोली, देखा जमीन पे 2 चांद लेटे हुए हैं। अब मेरी जबान जल जाती, मैं कभी ना पढ़ता ये जुमला, मैं मर जाता अज़ादारों में ये जुमला ना पढ़ता। अरे चिराग की लौ में चांद के टुकड़ों को देखा, दूर से खड़े होकर पूछा तुम कौन हो, सच बताओ। दोनों बच्चों ने सहम कर कहा हम मुस्लिम के बच्चे हैं। बस इतना कहना था कि वो उस मलून ने चिराग एक तरफ रखा, दाएं हाथ से बड़े बेटे की जुल्फें पकड़ी, बाएं हाथ से छोटे बेटे की जुल्फें पकड़ के उठाया। सुन लोगे जुमला, कर लोगे बर्दाश्त? मैंने तो शहादत नहीं पढ़ी, अरे मैंने तो शहादत नहीं पढ़ी, तमाचे पे खत्म कर दूंगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मेरा जुमला सुन लो। दोनों बच्चों को जुल्फों से पकड़ता हुआ, खींचता हुआ लाया और खींचकर अपने मकबरांडे के सुतून से बच्चों को बांध दिया। हाँ इसलिए सुना ना कि मैंने जुमला कह दिया। अरे बांधा रस्सी से जाता है ना, खुदा की कसम अगर रस्सी से बांध जाता तो मैं सब्र कर लेता। जालिम ने बच्चों को रस्सी से नहीं बांधा बल्कि बच्चों की जुल्फों से। मैं मर जाता ये जुमला न कहता। जुल्फों से बच्चों को बांधा और उसके बाद ये एक तमाचा मोहम्मद के लगाया, दूसरा तमाचा इब्राहिम के लगाया। सुबह हुई, जुल्फों से पकड़कर खींचता हुआ बाजार में चला, दरिया के करीब पहुंचा। अल्लाह अकबर। मासूम घराने के अफराद, कहा बच्चों कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे कहते हैं हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। मलून कहता है नमाज अब तुम्हें बचा नहीं सकेगी। दोनों बच्चे खानवादे मासूम के बच्चे हैं ना। ओ जालिम, हम जान बचाने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे, हम सजदा शुक्र के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चों ने नमाज पढ़ी। कहा पहले किस पर तलवार चलाऊं? तो छोटा भाई कहता है पहले मुझ पर तलवार चला दे, मैं छोटा हूं ना, मुझसे देखा नहीं जाएगा, पहले मुझ पे तलवार चला दे। पहले बड़े ने कहा नहीं, पहले मेरी गर्दन पे तलवार। कयामत बर्पा हो गई। हारिस की तलवार चली, बड़े बेटे की गर्दन। सुनो शादी नहीं, 2 मिनट अभी ना उठना, मुझे खत्म न करने देना। मैं 2 जुमले भाई मोहलत मांगता हूँ। तू रोते रहो, मोहलत मांगता हूँ अज़ादारों। बड़े बेटे के तलवार चली, गर्दन जालिम ने अपने पास रखी, बड़े बेटे को के लाशे को उठाया। अब छोटा भाई बड़े भाई के खून में लौट रहा है। हारिस तो लाशा उठाकर ले गया ना दरिया पर बहाने के लिए। इतनी देर में छोटे भाई ने बड़े भाई का सर गोद में रखा। पता नहीं, कहते हो शियो तुम रोते क्यों हो? अरे ये कहा करो तुम जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? ये कहा करो हम पे रोने पे एतराज करने वालों, हमें कहा करो शियो तुम जिंदा क्यों हो। अज़ादारों, छोटे भाई ने बड़े भाई के सर को गोद में रखा। भैया गम न करना, हम भी आ रहे हैं। भैया हमारा इंतजार, जुमला ज़हन में रखना, मजलिस वहीं खत्म करूंगा। भैया इंतजार करना, अकेले न जाना, हम आ रहे हैं। अज़ादारों, हारिस गया, बड़े बेटे के लाशे को दरिया पे फेंका। दरिया की मौजों ने लाशे को आगोश में लिया और लाश पानी की मौज पर ठहर गई। अल्लाह जाने कि सुन सकोगे या नहीं। इधर छोटा बेटा इंतजार में गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। जालिम ने दूसरी तलवार चलाई, छोटे बेटे का सर कटा, छोटे की लाश को लेकर चला, दरिया में फेंका। बड़ा भाई इंतजार कर रहा था। एक लाश इधर से चली, एक लाश उधर से चली, दोनों लाशें आपस में मिल गई। ऐसे में दरिया से 2 हाथ बरामद हुए। आवाज आई, बच्चों